Hello students, how are you all? Today we are going to start with our third chapter of expense, written by Francis Bacon. He was born in 1561 and he died by 1626. The first Baron Verulam and Viscount St. Alban was born at York House in London. Bacon was born in his York House in London in 1561, and Bacon had his education at Trinity College, Cambridge. He did his education at Trinity College, Cambridge. Then he became a member of Parliament in 1584. He wrote several papers on public affairs. In 1584, he was a member of Parliament. He joined Parliament and he was the member of Parliament. And he wrote several papers on public affairs. He wrote several papers on public affairs. What all is happening in the public, all the affairs he wrote. And one of his letters was a letter of advice to Queen Elizabeth. Then of his literary works, the most important are the essays. His prose style is compact and proverbial. His essays are full of worldly wisdom. One of his letter was letter to Elizabeth, Queen Elizabeth, letter of advice to Queen Elizabeth. And of his literary works, full of his literary works, we can see most of their important are essays. He used to mostly write essays, and this off expense is also an essay. His prose style is always compact and proverbial. मतलब पूरी जो भी मतलब fully mixed with all the proverbs will be there, which will help us to understand. Like directly he is not telling, but indirectly he is explaining the things, what will happen in the world, what is happening and how we are doing things. And then he is indicating us the things which is happening and we have to take care of. He is telling us about the public affairs. Okay. This essay is a guide to show us how we should manage our financial matters. Alexander Pope called Bacon the wisest of mankind. This essay guides us to help us to manage how we should manage the financial matters. And our Alexander Pope, he used to call this Bacon as the wisest of the mankind. In this essay, he instructs his readers to be discreet in spending money. According to him, one should spend only a fixed portion of his income and should personally look after his affairs. In this essay, he is telling us readers, he is advising us readers to be discreet in spending money. हमें कंजूसी दिखाना चाहिए मनी को स्पेंड करने के लिए, नहीं कि जो भी आता है इनकम जितना भी उतना ही हम लोग स्पेंड कर रहे हैं. ये हम रीडर्स को एडवाइस कर रहे हैं कि हमें सोच समझ के स्पेंड करना चाहिए. उनके तरह से अकॉर्डिंग टू हिम वन शुड स्पेंड ओनली अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ हिज इनकम एंड शुड पर्सनली लुक आफ्टर हिज अफेयर्स. उनका कहना है कि मतलब हर एक बंदे को जितना इनकम आता है उसका आधा भी नहीं, उसका 1/3 पोर्शन हम अपनी मंथली एक्सपेंस के लिए निकाल के रखें और उसी को हमें स्पेंड करना चाहिए. बाकी हमें सेविंग्स के तौर पे रखना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. Riches are for spending and spending for honor and good actions. Therefore, extraordinary expense must be limited by the worth of the occasion. For voluntary undoing may be as well for the man's country as for the kingdom of heaven. इनका कहना है riches are for spending, पैसे तो स्पेंड करने के लिए है, लेकिन and spending for honor and good actions, but it should be spent for some honor, अच्छे काम के लिए, गुड एक्शन के लिए या अच्छा नाम कमाने के लिए स्पेंड करना चाहिए. बेहुदा खर्च हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए. Therefore, extraordinary expense must be limited by the worth of occasion. हमें बेहुदा जो हम लोग खर्चा करते हैं अनवांटेड एक्सपेंसेस, उसको हमें ओकेशंस के लिए रखना चाहिए. जैसे कि मंथली एक्सपेंस तो होता है, प्लस किसी की शादी है, किसी के बर्थडे है, समथिंग और द अदर, और फॉर द नीडी वी विल शुड स्पेंड सम मनी. Otherwise, we should
save that money for our future. क्या मालूम कब किसको जरूरत पड़ जाए, कब मेडिकल हो सकता है या some or the other. Now also we are suffering with corona, we are COVID-19. So most of us are not getting salaries. Most of the parents are not going for job. Many are struggling because of money. The laborers are suffering. So many people are suffering. So if we spend extraordinary money without thinking, we won't be able to save and use that money in this time. So we should, Baker also tells us that we should be cautious in spending the money. We should be more cautious in saving the money because we don't know when it will be in use. For voluntary undoing maybe as well as for country, man's countries, as for the kingdom of heaven. We should give for the needy and the poor also, because it's like giving to the poor is like we are filling our treasure in the kingdom of heaven. What we are doing in this world will profit us. The profit will come in the heaven for us. So we should help the needy. It's not like many people used to boast for boasting purpose and getting the name to show off. They used to give money to the charity and all, and they will publish it to all the newspapers or some other organizations. Like मैंने इतना दान किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है. वो दान नहीं होता है. They are just publicity basis. They are doing it. पर हम अगर किसी गरीब लोगों को या चैरिटी में हम देते हैं, कहते हैं कि एक हाथ से देने वाला काम दूसरा हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए. With whatever we are giving it through one hand, the other hand should not know about it. Like that, we have to help the poor or give it for the needy or give it for the charity. Then only it will be like man's country for kingdom of heaven. But ordinary expense ought to be limited by a man's estate and governed with such regard as it is compass and not subject to deceit and abuse for servants, and order to the best show that the bills may be less than the estimation above. Here he says that ordinary expenses should be extended to be limited by a man's estate. जितनी अपनी आमदनी उतनी चादर हमें फैलानी, जितनी चादर उतना पैर फैलाओ. कहते हैं ना, मतलब जितना इनकम है उसके हिसाब से अपने को स्पेंड करने के लिए निकालना चाहिए. ये नहीं कि हमें इतना मिलता है, उनके घर में ये है तो हमें भी कुछ चाहिए. नो, दैट इज नॉट गुड. हमें क्या करना चाहिए, हमारी अपनी जरूरतों के या sacrifice needs should be satisfied. Should not be sacrificed, but it should be satisfied. Only the needs, not the wants. हमें चाहत तो हमेशा रहती है, हर चीज की चाहत रहती है. We are humans. We will be having lots of wants, but it should not be fulfilled. We should fulfill those wants little by little as we are having the income. जितनी सैलरी मिलती है उसका दुगना अगर खर्च करेंगे, that is not good. और अगर जितना पैसे मिल रहे हैं, जैसे कि अभी 10,000 रुपए तुम्हें मिल रहे हैं महीने के, तुम 15,000 खर्चेगी, मतलब you will make a list of things. It won't be nice. पहले ही आप लोगों को लिख लेना चाहिए खर्चे के बारे में, कितना होगा, कितना हो सकता है. वी शुड मेक अ बजट अबाउट इट. डेली बजट होता है, मंथली बजट होता है, तभी हम लोग अपने को स्क्रूटनाइज करके अपनी इनकम को कम कर, मतलब सेव एक्सपेंस को कम कर सकते हैं. ओके, सो हियर ऑर्डिनरी एक्सपेंस ought to be limited by a man's estate and governed with such regard as it is with his compass. अपनी की तुलना ये नहीं कि कोई मशीन में जाके तुलना करने के लिए जाके दुकान में जैसे कि रहते हैं वेइंग मशीन, उसमें जाके अपने को नाप के, ऐसा नहीं है. अपने अंदर ही आत्मा से हमको करना चाहिए. हम अपने नीड्स के लिए जितना खर्च करना, वी हैव टू weigh it out, we have to keep it aside, और उतना ही खर्च करना. उससे ज्यादा अगर हो तो we will see to it, but we should be all having the tendency to save more than to spend more. Okay, and he says that not subject to decide and abuse of servants. Servants रखना नहीं है, ऐसा नहीं बोलते. जितना हम अपना काम कर सकते हैं, that is good for our health also. पहले के जमाने में क्या था, no servants were the only ladies were only doing all the household work. So on behalf of the, because of that, all the ladies are now also healthy. They are well doing everything. But here nowadays we are keeping servants at home
to do all the simpler things and we are becoming lazy by every needs, है ना। हर चीज में ऐसी हालत हमारी बिगड़ गई है कि मतलब हर चीज के लिए सर्वेंट्स को रख दिया। ये सर्वेंट्स भी ऐसे हैं जो मतलब कहते हैं कि 1 या 2 साल से ज्यादा एक सर्वेंट को नहीं रखे, 1 साल भी रखो तो भी मतलब जांच के रखो कि क्या है। दे विल कम, दे विल वर्क फॉर अस वेरी वेल एंड दे विल नो ईच एंड एवरी हैपनिंग्स इन आवर हाउस। हमारे घर में कहाँ रहते हैं, कैसा लोग हैं, क्या सोचते हैं, क्या कितने टाइम में करते हैं। वी शुड नॉट प्लेस एनी सर्वेंट्स, एनी आउटसाइडर्स टू बी इन आवर हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना हम कर सकते उतनी बचत हमारी है और जो हमारे हेल्थ में भी अच्छा मिलता है, मतलब we will benefited our health also, both cases financially and health wise. And moreover that some of the other they used to come and धोखा देना। deceit means deceit and abuse of servants। हम लोगों को क्या है, कोई सर्वेंट्स आके हमें कुछ भी दुबला बुंदा के धोखा नहीं लेके हमारे पैसे लेके नहीं जाना चाहिए। ये सब बातों को हमें माइंड में रखना चाहिए। वी शुड स्पेंड, हाँ थोड़ा बहुत अगर तकलीफ है तो एक सर्वेंट को रखना चाहिए, लेकिन हर काम करने के लिए इतने सारे सर्वेंट इतना पैसा उन्हीं को और एक काम के लिए दुगना लेते हैं ना, मतलब लोगों को कल्पित करते रहते हैं ना। दैट शुड नॉट बी देयर। In order to be the best show that the bills may be less than the estimation abroad। और हम लोग जो सामान खरीदते हैं या कुछ भी है महीने का मतलब कम होना चाहिए, नहीं कि बिल्स बहुत ज़्यादा है उसी के हिसाब से हम जाके ले लेंगे। नो, when we are going to a shop we should argue with the amount। हमें क्या करना चाहिए, बार्गेन करना चाहिए। ये नहीं कि 1000 रुपये मांगा 1000 रुपये के दे दें। नो, वी शुड आस्क फॉर सम लेस। उसको बार्गेन करो, 1000 का मांगा 800 बोलो, 800 बोल के, या फिर 500 बोलो, 500 बोल के 800 में खरीदो, है ना। क्योंकि क्या है, दुकान वाले भी अपना कितना मुनाफा हो सकता है, दे आर ट्राइंग फॉर द सेम थिंग, दे विल गिव अस ए हायर प्राइस ओनली, बट वी हैव टू look in our budget and bargain with them for everything we used to bargain, then only our life will be going smoothly. Not bargaining in other things, but for financial things and all, in the shop and all, if we used to go, we should bargain once or twice, we should know, then they will also understand about that, then they will give in a minimum charge. They won't take lots of profit from that product. Then so we should pay attention for our bills, not giving the same amount, but we should also check if we are going in a होटल में जाके खाना खा के जो बिल दिया है उसी को उठा के पहले हम लोग देखेंगे उसमें क्या लिखा है, हमने वो चीज़ दिया है कि नहीं दिया, कितना दिया है, उन्होंने कितना देना चाहिए। एवरीथिंग वी शुड बी चेकिंग इट आउट। ये नहीं हमारे पास पैसे हम उठा के बेफालतू में खर्चा कर, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, यू गिव इट टू द पुअर, they are also starving like anything in this world. Then certainly if a man will keep but an even hand, his ordinary expense ought to be but to half of his receipts, and if he think to wax rich but taught the third part, it is no basis for the greatest to descend and look into their own estate. Some forbear it not upon negligence alone, but doubting to bring themselves into melancholy. In respect they shall find it broken, but wounds cannot be cured without searching. यही बता रहे थे कि मतलब हमें जो भी है बिल्स हो, जो भी सामान हम खरीदते हैं, हर चीज की हमें एक परख होनी चाहिए। We should also know about the things quality what we are getting. We should also know the price of it, what is going in the market nowadays. And we should look after each and everything at least for some few months. Then our things will be practically regularly basis it will be going on well. ये नहीं है कि हमने जितना दिया है, अरे हम अगर पूछेंगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा, क्या लोग सोचेंगे हमारे बारे में, हम अपने नेम स्टेटस को ठेस ना पहुंचाए। नो, इट इज नॉट डूइंग दैट। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, इफ यू आर क्वेश्चनिंग देम, इफ यू आर चेकिंग योर क्वालिटीज of the products, or the price of the products, or the quantity of the products, you are doing good to the society। वो लोग भी देखें हाँ ये लोग ऐसे नहीं है, पैसे बेफालतू में नहीं है। कहते हैं ना कि जितना पैसा है ये इतना भी नहीं हो कि नदी में फेंको तो
भी क्या करना चाहिए, उसको नाप के गिन के तुलना करके फेंकना चाहिए। ये नहीं कि जितना था उठा के ऐसे बेफालतू में खर्चा कर रहे हैं। नो, इट इज नॉट गुड। एंड wounds cannot be cured without searching। जो दरारें पड़ रही हैं, जो चोटें लग रही हैं, जहाँ गलतियां हो रही हैं, ऐसे ही सही नहीं कर पाएंगे। पहले उसको, जैसे कि अभी शरीर में कहीं चोट लग गई है, उस चोट को पहले कहाँ लगी है, दर्द कहाँ हो रहा है, हमें फाइंड आउट करना है। उसमें रूट तक जाना है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे लगी, क्या दिक्कत है उसमें, उसके बाद उसकी दवाई देंगे ना। ये नहीं कि पैर में लगी और हम सर दर्द की गोली दे रहे हैं। नो, इट इज नॉट राइट। He that cannot look into his own estate at all had need both choose well those whom he employed and change them often, for new are more timorous and less subtle। अब अपनी गलतियां अपने को खुद से नहीं परख पा रहे हैं, अपनी स्टेटस की वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपने को ही इतना एक्स्ट्रा स्पेंड करके हम वेस्ट ऑफ कर रहे हैं। अपने घर में जो हो रहा है छोटी से छोटी चीज, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट रॉन्ग थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग, द extraordinary expenses what we are doing, how can we ask our laborers or our employees or our servants to trim themselves? तो उनको कैसे हम रोक तो कर सकते हैं। जब अपनी, कहते हैं ना, अपनी आंखों में बड़ा सा तिल्ली रख के दूसरे की आंखों में छोटे से पत्थर कंकड़ को ढूंढना, ये गलत बात है। फर्स्ट वी हैव टू प्रूव आवर सेल्फ ट्रू इन ऑल दिस थिंग्स, देन ओनली वी कैन आस्क आवर अंडर वर्किंग पीपल टू करेक्ट देमसेल्व्स। अगर हम सही नहीं है, हम जाके मार्केट में कहते तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, ये गलत है, हम अपने सर्वेंट के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, उनको जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर हम मार्केट में जाके बोल रहे हैं तुम प्रोडक्ट में इतना प्राइस ले रहे हो, गलत बात है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, वी आर नॉट एबल टू से, वी आर नॉट वर्दी टू से सो। देन he that can look into his estate but seldom, it behoved him turn all of certainties a man had need, if he subtle means difficulty, melancholy, sorrow. Okay. He that cannot can look into his estate but seldom, if behoveth him to turn all to certainties। अब यहाँ पर क्या है, अगर एक बंदा अपने एस्टेट में, मतलब अपने ही घराने में या अपने घराने में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने बिजनेस में कभी कभार तो देख ले, तो क्या कर सकता है, अनहोनी चीजें या डाउटफुल जो निश्चय नहीं है हमारे लिए, वो सब चीजों को वो क्लियर आउट कर सकता है। ये नहीं कि हमेशा नहीं देखना है। He doesn't have to look after things daily or weekly or monthly, at least in a month, in a week, once in a week or once in a month. If you just go through all the budgets and audits and all, what all bills is being coming, other persons whom you are hired, वो अपनी चीजों को और अच्छे से परखेंगे। ये नहीं कि आप ध्यान नहीं दे रहे, ऑनर इज नॉट लुकिंग, ही इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन मी, देन आई कैन डू वॉट एवर। उसी में क्या होता है, लोगों से गलतियां करवाते हैं। क्या, ये देखो मालिक मेरे पे विश्वास करता है तो मैं जितना भी दूंगा वो उतना ही एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे सोच सोच के क्या है, अपने अंदर क्या है कि मैं अगर थोड़ा सा पैसे ले लूँगा, अकाउंट्स में गलती करूँगा, दैट वोंट बी अफेक्टिंग माई फैमिली और द ऑनर्स फैमिली, सो मैं ये कर सकता हूँ। ऐसी सोच दूसरों को हमें नहीं देना चाहिए। कभी ना कभी तो हमें अपने एस्टेट को भी कभी ना कभी परख के देखना चाहिए। देन a man had need, if he be plentiful in some kind of expense, to be as saving again in some other। अगर एक मनुष्य की आवश्यकता पूरी अगर हो जाए, प्लेंटिफुल काइंड ऑफ एक्सपेंसेस हैं, अगर वो पूरा कर सकता है, मतलब होने के बाद उसके बाद भी हम देखना चाहिए। हमने क्या पहले बोला था, हमें करने के मतलब हमने इनकम के पूरे अमाउंट को नहीं, उसके एक पार्ट को यानी कि 1/3 पार्ट को हमें एक्सपेंस के लिए निकाल देना चाहिए। अब उसमें से भी हमें बचत करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी और सेविंग हो जाए।
है ना। सेव तो हम कर रहे हैं, अपने 1/3 ले रहे हैं, बाकी हम सेव करने के लिए डाल रहे हैं, या कोई और चीज के लिए भी थोड़ा बहुत निकाल देंगे, लेकिन जो एक्सपेंस के लिए निकाला है उसको भी थोड़ा बहुत हमें वी हैव टू ट्राई टू सेव फ्रॉम दैट एक्सपेंस ऑल्सो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल आवर नीड इन अ प्लेंटीफुल वे, कि मतलब जितना हो सकता है हमने ले लिया। ये नहीं कि हम भूखे हैं और भूखे रहने दीजिए और हमने सेव कर दिया। नो, वी हैव टू स्पेंड। व्हाई वी पीपल आर वर्किंग? हम लोग अपने खाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए हम लोग काम करें। अब उनकी जरूरतें अगर जरूरत काम की है, इफ इट इज वर्थ वाइल, वी हैव टू स्पेंड फॉर देम, बट वी हैव टू सेव फॉर देम ऑल्सो फॉर द फ्यूचर, है ना। देन as if he be plentiful diet to be saving in apparel, if he be painful in the hall to be saving in the stable and the like. For he that is plentiful in expense of all kinds will hardly be preserved from decay. उनका कहना देखो, अभी जो मैंने बोला वही, कि मतलब जो स्पेंड कर रहे हैं, भूखा रहे कि हमें सेव नहीं करना है, क्या जरूरत है। A person being earning and he is saving like anything and staying in a stable, एक अच्छा कपड़े नहीं पहन रहे, एक अच्छे घर में नहीं रह रहे हैं, ना अच्छा खाना खा रहे हैं, बस सेव कर रहे हैं। इट्स नॉट वर्दी, वो उसकी जरूरत नहीं है, बंदा क्या के लिए फिर कमा रहा है ना। ही इज प्रिजर्व फ्रॉम डीके, डीके के लिए मतलब डीके मीन्स डिकम्पोजिशन, मतलब क्या है, हम लोग वेस्ट मटेरियल है वो, हमारे जो धन हम लोग, वी आर नॉट स्पेंडिंग फॉर आवर नीड एंड वी आर जस्ट पुटिंग इट फॉर सेविंग सेविंग सेविंग, दैट कम्स एज अ डीके, रेसिडुअल, है ना, उसकी तरह हो जाता है जो वेस्ट है। क्योंकि पैसे बैंक में रखे क्या करेंगे, जो अपने काम नहीं आए। हमने कमाया, हमने दिन रात मेहनत किया, पैसे कमाए, एंड वी आर अर्निंग लाइक एनीथिंग, वर्किंग हार्ड, and we are not having at least a one-time good meal. What is the use of that money? It's like decay, like wastage. Then, in clearing of a man's estate, he may as well hurt himself in being too sudden as in the letting it run on too long. In clearing of a man's estate, he may as well hurt himself in doing too sudden as in letting to run on too हाय। मतलब हम अपने को, मतलब ये क्लियर करने के लिए, अपने स्टेट में, मतलब अपना ये देखने के लिए, अपना तरफ को सही करने के लिए जब हम जाते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, हम भी पेनफुल हो जाते हैं, हमें भी दुख होता है ना, कि आउट ऑफ अ सडन आके मैंने किया, दूसरों को देखो दुख हो रहा है। वी आर ऑल्सो समटाइम्स गेटिंग हर्टेड, देखो ये मैंने ऐसा किया, ये क्यों किया। Sometimes we will be scolding our family members. Why you have spent this much of money in this thing when it is not needed? It's not worthwhile. Why you are doing so? उनको डांट लगने से हमें भी डांट लगता है, क्योंकि हम क्या है, उनका फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। बट फीलिंग्स को अगर हर्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्टिंग में हम लोग नहीं रोकेंगे, they will be free to spend in whatever they wanted to. Then we are not able to save also. That is all extraordinary expenses, है ना। For hasty selling, hasty means hurry, selling commonly as disadvantageable as interest. Hasty selling commonly as disadvantageable as interest. हम लोग जल्दबाजी में जो खर्च करते हैं वो क्या हो जाता है, हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ सामान आ गया, देख लिया, घर पे कोई बंदा आ गया, selling person comes and he used to show us some of the other things, thinking for it, and we think हाँ इतने में देखो बहुत सस्ता है, अगर मिल जाए तो अच्छा है, अपने घर में भी अच्छा खासा रहेगा। जल्दी जल्दी में हम सोचे बगैर हम खर्च करके सामान ले लेते हैं, वो लेकिन हमारे लिए नुकसान कर देगा। वी आर नॉट फाइंडिंग आउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, लाइक हाउ इट विल वर्क, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वी आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग, जल्दी में हमने कर दिया। कभी कभी क्या होता है, बच्चे आके बोलते हैं कि हमें वो चाहिए, हमने बच्चों के दिल रखने के लिए बिना सोचे समझे उठा के दे देते हैं। हाँ पापा के पास पैसे हैं ना, आप हमें क्यों नहीं देते। कभी कभी कुछ बातों में हम लोग सेंडी हो जाते हैं, तो हम स्पेंड करते हैं, लेकिन वो वी हैव टू थिंक वेदर इट इज नाइस फॉर आवर चिल्ड्रन और नॉट, वी आर स्पेंडिंग इट फॉर वर्दी थिंग और नॉट, वी आर वी स्पेंडिंग इट एज लग्जूरियस थिंग। जैसे कि घर में ज़्यादा गर्मी नहीं है, वी कैन एडजस्ट विद अ फैन और अ कूलर इज ओके। At the time we are spending for AC,
दैट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग्जरियस लाइफ वी आर स्पेंडिंग। एक कमरे में एक घर में 3 कमरे हैं, ठीक है, तीनों कमरे में एक टीवी लगाने की क्या जरूरत है? इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वी आर शोइंग लग्जरियस लाइफ। इट्स नॉट गुड, क्योंकि टीवी का चार्ज एक टाइम में हमें स्पेंड करना है, ठीक है, उसके बाद उसका केबल कनेक्शन या सेट बॉक्स लगाना है, एक में एक ही कनेक्शन आता है, फिर मंथली रिचार्ज, दीज आर ऑल वेस्टेज ऑफ मनी, ओके। बिसाइड्स he that clears at once will replace, for finding himself out of stairs he will revert to his customs, but he that cleareth by degrees induced a habit of frugality, and gained as well upon his mind as upon estate, certainly who has a state to repair। अगर कोई बंदा अपने के देख के मतलब अपनी गलतियां समझ के अपने फिनेंशियल जो क्राइसिस मतलब जो स्पेंडिंग था उसमें ओवर स्पेंडिंग था, उसको काट पीट के अगर वो लेके आता है, अपने को चेंज करता है, रिवर्ट मीन्स रिटर्न, तो स्टेप बाय स्टेप अपने जगह को मतलब अपने कस्टम को अपनी लाइफ को वो सेटल करके वापस अच्छे में लेके आ रहा है ना। एंड and mind upon his estate, certainly who hath a state of repair may not despise small things, and commonly it is less dishonorable to abridge petty charges than to stop to petty gettings। हमको क्या करना चाहिए? हमें may not despise small, अगर वो बंदा अपने आप को रिपेयर करके अगर वो आता है तो वो मतलब he should not despise small thing, अपने में मतलब वो गलतियां जो हैं उसको घृणा के तौर में हेट नहीं करना चाहिए। petty gettings, a man ought verily to begin charges which once begin will continue, but it matters that return not may be more magnificent। मतलब a man ought verily केयरफुली जो अच्छे से मतलब चार्ज करने मतलब स्पेंड करने लगा है वो स्पेंड हमेशा अच्छे से ही करेगा, बट इन मैटर्स दैट रिटर्न नॉट ही मे बी मोर मैग्निफिशेंट। अगर कोई बंदा अपने वो फिजूल के खर्चे को बंद किए बगैर फिर से वो दोबारा दोहराए जाए तो वो अपने जिंदगी को मतलब शानदार तो बना रहा है, बट ही इज गोइंग टू अ डिस्ट्रेस्ड लाइफ, उसको ही नहीं पता वो क्या कर रहा है। तो इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से बेकर हियर टेल्स अस दैट देयर इज एन ऑर्डिनरी एक्सपेंस आल्सो जो हमारे लाइफ में हमेशा होती रहती है, मतलब फोन बिल विल देयर, मतलब मंथली एक्सपेंस विल बी देयर इन विच वी हैव टू गिव द चिल्ड्रंस फीस, फूड आइटम्स, ग्रोसरीज विल बी देयर, then phone bills, phone charges, TV charge, etc. We will make a budget. That is an ordinary expense. That fulfilling the money which we are spending for fulfilling our needs, a normal needs. That is ordinary expense. Okay? But if we are spending more than that for our luxury, like going for party, eating fast foods every day, going outside for dinner or some of the other things, like always going spending like anything, that is an extraordinary। कहते हैं बेगन के मतलब अगर तुमने जितना तुमने अपने एक्सपेंस के लिए निकाल के रखा था उसमें से अगर तुम ज्यादा कहीं पे एक बार तुमने खर्च कर दिया। हाँ, हम लोग हर महीने ड्रेसेस नहीं लेते हैं, है ना, कभी कभार हो जाता है कि ओकेशंस आ जाते हैं तो हमको ड्रेस लेना पड़ता है, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए हम लोग लेंगे। उस टाइम में क्या है, थोड़ा बजट ज्यादा हो जाता है, लेकिन उस बजट को हम अगले मंथ के लिए हम लोग उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। क्या अगले महीने ज़्यादा एक्सपेंस ना करके जितने हमने ड्रेस के लिए वगैरह स्पेंड किया तो उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में मैंने इतना खर्च किया है मतलब ग्रॉसरी के लिए या घर के हाउस होल्ड थिंग्स के लिए, वो एक ही महीने में जितना खरीदा वो पूरा खत्म नहीं होता है। तो नेक्स्ट मंथ के लिए हम लोग बजट बनाएंगे, इतना है, जैसे कि मैंने 2 किलो लिया था या 1 किलो 1.5 किलो जितना भी लिया था तो उसमें मेरे 1 किलो या आधा किलो इज लेफ्ट ओवर, सो रिड्यूसिंग दैट वी विल बाय द क्वांटिटी फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो उसमें भी हमारी बचत करनी है, ऐसे मतलब वी हैव टू मेक अ बजट बिफोर वी स्पेंड। और अगर कभी कभी मतलब हर दिन बाहर जाके खाना इज नॉट गुड फॉर अ हेल्थ ऑल्सो,
एंड फिनेंशियली ऑल्सो नॉट गुड. तो हम लोग क्या है, कभी महीने में 1 या 2 बार जाएंगे, है ना, ऐसा कुछ करेंगे, पार्टी करेंगे. सो इफ यू आर डूइंग लाइक दैट मनी शुड बी रिकवर्ड इन अदर थिंग्स. जैसे कि हमने पार्टी किया है तो हमने खाना वगैरह उसमें किया, तो इसमें थोड़ा सा कम करेंगे कि मतलब वो पैसे बैलेंस हो जाए. हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारे पास इतने पैसे बैंक में है, हमने सेव कर रखा है, अगर ये वाला बजट खत्म हो जाए तो हम वो वाला उठा के यूज करें. नो, इट इज नॉट राइट. वी हैव टू थिंक दैट वी हैव स्पेंट दिस मच, सो वी विल कट शॉर्ट अवर नीड्स इन दिस मंथ विच इज नॉट नेसेसरी. तो उसको हम लोग करके हमें करना चाहिए. रोज रोज फास्ट फूड खाना, रोज ये फोन में चैटिंग का, मतलब एवरीथिंग इन आवर लाइफ शुड बी करेक्टेड इन सम और द अदर वे. जैसे हम थे, एटलीस्ट आफ्टर लर्निंग, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर ऑफ फ्रांसिस बेकन, वी शुड रिकॉग्नाइज आवरसेल्फ हाउ वी आर स्पेंडिंग एंड बिकॉज ऑफ अस हाउ आवर पेरेंट्स ought to spend. They are pushed to spend, forced to spend. So we should cut short our things. We should look around us. How many people are there in a needy way? Some are starving like anything. Some doesn't have a cloth during this summer rainy or during the winter season also. Never have a blanket also. They're shivering like anything. That too not in a room like this we are staying. They don't have any shelter also. We should look around them. Some of the other savings we should also make as children. We should also spend. We used to get pocket money. We used to go here and there to some restaurants and all. At least one time money we can save and give it for others. They will be blessing us. They will be so happy. Our one time meal for them will be like a month's meal. For they will be starving for one roti at least. If we are giving them 10 rupees also, they will be like getting heaven in their hand. So here Bacon says you should correct yourself. The person who is correcting himself will be like person who corrects himself and spend less or do only the ordinary expenses or help the needy of the poor. It's like the man's kingdom in heaven. He is having the man's country in like as in heaven. So we should recognize ourselves. मेरा यही कहना है कि मतलब आप लोग भी अपने को समझे, जितना खटी कर सकते हैं एक्सपेंसेस का उतना कीजिए. हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हमें उतना ना हम लोग कर सकते हैं, जितना बचत हम कर सकते हैं. वी विल हेल्प फॉर द नीडी. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. रीड this chapter, go through it and understand well. Thank you.